Assalamu alaikum. Welcome to the science classroom. I am your instructor Najir Raza. We are discussing the chapter diffusion and osmosis, and today is our day number 4, lesson number 4. In our previous lesson, lesson number 1, 2 and 3, we have discussed some important terms like concentration gradient, equilibrium, semi-permeable membrane, impermeable membrane, etc. etc. In our second lesson, we have discussed diffusion. What is diffusion? The random movement of particles from their higher amount towards their lower amount. An example of diffusion हमने देखी like oxygen move inside the cell, red blood cell, and carbon dioxide leave the red blood cell because of diffusion. Then we have seen that in animals, the digested food from small intestine moves into the blood stream due to diffusion. After that, we have discussed osmosis in our previous lesson. What is osmosis? Osmosis is basically just like diffusion, but osmosis needs on two basic things. Osmosis needs a semi-permeable membrane, and osmosis only takes place in the water molecules. Osmosis is basically movement of water molecule from their higher amount towards their lower amount. And I have given you a reference video to watch. So we are starting our today's lesson. Let's see what we are going to discuss today. In our today's lesson, we are going to recall osmosis once again. What is osmosis? The movement of water molecule from their higher concentration towards their lower concentration across a semi-permeable membrane. Dear children, if you remember that in my first lesson, I have asked you that concentration of water is basically water potential, right? If you remember, I have asked you that concentration, the word concentration of water is basically termed as water potential जब पानी की बात हो रही थी. So we can say that अगर हम सेकेंड तरीके से डिफाइन करें, we can say that osmosis is basically movement of water from their higher water potential towards their lower water potential. ठीक है, वाटर पोटेंशियल का मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन. तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर वाटर पोटेंशियल towards their lower water potential across a semi-permeable membrane is called osmosis. ठीक? This is another way to express the osmosis. Now, osmosis in living things. आज हम देखेंगे कि living things में osmosis क्यों इतना ज़्यादा important है कि हम उसको इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं. Whenever a living solution is placed in a hypotonic solution, सबसे पहले hypotonic solution को discuss कर लेते हैं. Hypotonic solution is a solution in which water is in less amount. उसमें water less amount में होता है, solute less amount में होता है और water potential ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, solute कम होता है. For example, आपका tap water जो नलके में पानी आ रहा होता है, that is also hypotonic solution. हाउ? क्योंकि आप कहेंगे मिस उसमें तो हमने कुछ मिलाया हुआ नहीं होता. हमने नहीं मिलाया होता, लेकिन वो वाटर अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स, आपके रास्ते में जो उसको वाटर पाइप से मटेरियल्स मिल रहे होते हैं, जो गार्बेज मिल रहा होता है, वो सब उसके अंदर डिसॉल्व हुआ होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में. दैट्स व्हाई ये टैप वाटर इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. If you are going to place a living cell in a hypotonic solution means जिसमें water potential ज़्यादा होगा, तो होगा क्या? होगा ये कि वाटर की कंसेंट्रेशन सेल के बाहर यानी जो सोल्यूशन है उसमें ज्यादा होगी और सेल के अंदर कम होगी. तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन, और वो वाटर सेल के अंदर भरना स्टार्ट हो जाएगा और सेल स्वेल कर जाएगा. एक लिमिट तक तो वो स्वेलिंग बर्दाश्त करेगा और उसके बाद वो बर्स्ट कर जाएगा, जैसे आपके सामने रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो गया. हाउ? क्योंकि वाटर बाहर इस सोल्यूशन में ज्यादा था, सेल के अंदर कम था. वो उसके अंदर मूव करना स्टार्ट किया और ये सेल बर्स्ट कर गया. राइट? क्वेश्चन इज मिस कि ये ऑस्मोसिस कैसे है. तो ये ऑस्मोसिस इस तरीके से है क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. इस वजह से ओनली वाटर अंदर गया और वो सेल के अंदर भर गया और फाइनली सेल बर्स्ट हो गया. राइट? तो द सोल्यूशन में
नेट मूवमेंट क्या, वाटर सेल के अंदर चला गया और सेल में बर्स्ट. दिस इज ऑस्मोसिस इन विच वाटर इज मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर. Water is moving from outside to inside and making the cell burst, right? So osmosis, अगर हम इसी भी लिविंग सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो सेल बर्स्ट कर जाते हैं, ठीक, स्पेशली द एनिमल सेल. बट प्लांट सेल यहाँ पे बर्स्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसके पास तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल वॉल की, वो उसको बर्स्ट होने से बचा लेता है. नाउ hypertonic solution. Hypertonic solution is a solution in which we have more amount of solute. वो गाढ़ा वाला solution जिसमें बहुत ज्यादा amount में solute होता है. Hypertonic solution में आप जैसे ही सेल को डिप करेंगे, what will happen? होगा क्या कि सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर चला जाएगा and the cell will lose its water and it will become flaccid. वो मुरझा जाएगा, वो अपना सारा वाटर लूज कर देगा और उसमें प्लाज्मोलाइसिस भी हो सकता है, ठीक. So what will happen the cell when it will be placed in hypertonic solution? When cell will be placed in hypertonic solution, the cell will lose its, what is the hypertonic solution? In which the concentration of water is quite low, water potential is low, solute ज़्यादा, solvent कम यानी water कम, तो cell will lose its water. Net movement क्या होगी? Water outside the cell जाएगा and it may cause the plasmolysis or death of the cell. Now isotonic solution. Isotonic solution मैंने लेसन नंबर 1 में भी कहा था कि आइसोटोनिक का मतलब होता है कि सेल के दोनों तरफ हमारे पास इक्वल अमाउंट हो, सोल्यूशन में इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट हो. सो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें बाहर भी सॉल्यूट 10% है और अंदर भी सेल के 10% है. तो ऐसे सोल्यूशन में जब हम किसी भी सेल को डिप करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, राइट. जितना वाटर अंदर जाता है उतना ही वाटर बाहर आता है, ठीक. And this is called isotonic solution because the amount of water is equal on both sides. ये isotonic solutions में डिप करके हम सेल्स को एक लंबे टाइम के लिए रख लेते हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आता. Now see, I have a comparison of hypertonic, hypotonic and isotonic solution. Dear learners, keep in your mind कि osmosis वो प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में, आपकी और प्लांट्स की बॉडी में वाटर की अमाउंट को इक्वल रखता है. वरना प्लांट सारा जमीन से हर वक्त सारा पानी एब्जॉर्ब करते रहते और दे फाइनली दे बर्स्ट, दे कुडंट एग्जिस्ट और जमीन का सारा पानी खत्म हो जाता. और इंसानों में भी सेम होता कि वो इतना पानी अपने अंदर रख लेते कि उनकी बॉडी सिर्फ पानी से ही स्वेल कर जाती. सो इट इज ऑस्मोसिस जिसने वाटर की अमाउंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में फिक्स रखी हुई है. कि क्यों ऐसा हमारे पास नहीं होता कि फिशेस पानी में रहती हैं और वो पानी उनके मुंह में भी जा रहा होता है, बट वो एक सर्टेन अमाउंट में पानी को रखती हैं, वरना वो सारा ओशंस का पानी पी जाती या उनकी बॉडी फट जाती इतना ज्यादा पानी लेने से. व्हाई दे डोंट, वो पानी में रहते थे क्यों पानी को इतना ज्यादा नहीं पीती? बिकॉज देयर इज ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस जो है वो वाटर की अमाउंट को बैलेंस रखता है सेल के अंदर और सेल के बाहर. इन एनिमल एंड प्लांट बोथ हैव अ water, they both maintain the amount of water because of osmosis. इसीलिए हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन में तीन तरह का ऑस्मोसिस देखने में आता है. इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जहां पे वाटर सेल के बाहर यानी सॉल्यूशन में ज्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है. तो होता क्या है, जैसे ही आप किसी भी एनिमल और प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी जिसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा है उसके अंदर रखेंगे तो एनिमल सेल बर्स्ट कर जाएगा और प्लांट सेल टर्जिड यानी फूला हुआ मोटा हो जाएगा.
एनिमल सेल क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो नहीं करता, तो वो बर्स्ट नहीं करेगा, वो बर्स्ट कर जाएगा। लेकिन प्लांट सेल क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनल सेल वॉल है, वो उसको फटने से बचाएगी और वो उसको प्लांट सेल मोटा हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की एग्जांपल है हमारे पास सिंपली हमारा टैप वाटर, इट इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसमें थोड़ी सी अमाउंट में मिनरल्स और सॉल्ट्स एडेड होते हैं। आपने घर में देखा होगा आपकी मम्मी जब फ्रेंच फ्राइज या पकोड़े बना रही होती हैं तो वो वेजिटेबल्स को काट के पानी में डिप कर देती हैं और थोड़े से टाइम के बाद वो वेजिटेबल्स फूल जाती हैं, पानी उनमें ज्यादा हो जाता है। व्हाई? बिकॉज पानी की कंसंट्रेशन वेजिटेबल्स के अंदर कम होती है और वेजिटेबल्स के बाहर ज्यादा होती है, तो वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। इन hypertonic solution, now we are discussing the hypertonic solution, sorry, इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाटर जो है वो सेल के बाहर कम होता है। क्यों? क्योंकि हाइपरटोनिक, हाइपर मीन ज्यादा, टॉनिक मीन सॉल्यूट, तो हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्ट या शुगर ज्यादा होती है और वाटर कम होता है। तो ऐसे सोल्यूशन में क्या होता है, ऐसे सोल्यूशन में वाटर जो है वो सेल को छोड़ के बाहर निकल जाता है, ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, दोनों को छोड़ के वो बाहर निकल जाता है। बाहर की कंसंट्रेशन क्योंकि उसमें कम होती है, सेल में ज्यादा होती है, वो पानी वहां से छोड़ के बाहर चला जाता है और सेल फाइनली श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। और एक लंबे टाइम तक अगर सेल उसी सोल्यूशन में रहे तो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है एंड इट विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। यही प्रोसेस हमारी मदर्स कर रही होती है जब वो पिकल्स बनाती हैं, अचार बनाती हैं। वो सिंपली क्या करती हैं, उसके ऊपर बहुत सारा सॉल्यूट रब कर देती हैं। सॉल्यूट के रब करने से वाटर जो है वो उस अचार में से, उस आम में से, उस वेजिटेबल में से निकल के बाहर चला जाता है और अंदर से ड्राई हो जाता है, ठीक। सो हाइपर में सेल से बाहर जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक में सेल के अंदर आता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्योंकि वाटर की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में और सेल के अंदर बराबर होती है तो वो इक्वली वाटर अंदर भी आता है बाहर भी जाता है। एक बात याद रखिएगा, प्लांट सेल हाइपोटोनिक में नहीं बर्स्ट होता। व्हाई? बिकॉज इट हैज एडिशनल प्रोटेक्शन, दैट इज सेल वॉल। नाउ ऑस्मोसिस इन रेड ब्लड सेल्स, आपके पास रेड ब्लड सेल्स है, इनमें ऑस्मोसिस आपको नजर आ रहा है। दिस इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन में ये इस तरीके का होता है। दैट्स व्हाई प्लाज्मा और सेल के अंदर के वाटर का पोटेंशियल इक्वल होता है, इसीलिए सेल बड़े आराम से प्लाज्मा में घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्लाज्मा को छोड़ते हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज उनकी वाटर की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। this cell is in isotonic, then this is in hypotonic and this is in hypertonic। यहाँ उसने एक्स्ट्रा वाटर स्वेल कर लिया, अगर थोड़ी देर मजीद रहेगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा। यहाँ इसने अपनी बॉडी से वाटर एक्सपेल कर दिया है, ठीक। नाउ दिस इज आइसोटोनिक, दिस इज हाइपोटोनिक एंड दिस इज हाइपरटोनिक। इसी तरीके से सेल जो है वो प्लाज्मा में सरवाइव करता है क्योंकि प्लाज्मा में सॉल्ट और सेल के अंदर सॉल्ट जो सॉल्यूट जो है वो बराबर अमाउंट में होते हैं। नाउ यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, इसके बाद मैंने एक वीडियो का लिंक आपको दिया है, प्लीज वॉच इट, इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। Then why does animal cell burst while plant cell do not burst in hypotonic solution? Because animal cell में सेल वॉल नहीं होती जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, बट प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो उसको प्रोटेक्ट कर देती है, ठीक। दैट्स व्हाई एनिमल सेल तो हाइपोटोनिक में बर्स्ट कर जाता है जबकि प्लांट सेल नहीं करता। उसका वैक्यूल और उसका सेल वॉल उसको हेल्प करता है फटने से बचाने में। देन वी हैव डन 3 स्ट्रक्चर्स, आपको इनको लेबल करना है। वीडियो को देखेंगे, रेफरेंस वीडियो जो मैंने आपको एम्बेडेड की है, और उसके बाद इस स्लाइड को लेबल करेंगे। और उस लेबलिंग क्या है, दिस इज हाइपोटोनिक, दिस इज हाइपरटोनिक एंड दिस इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं आता, हाइपरटोनिक में चेंज आ जाता है एंड हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर जाता है। हाइपर में श्रिंक कर जाता है और हाइपो में स्वेल कर जाता है। यू हैव टू वॉच दिस वीडियोज। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इन वीडियोस की एक फॉर्मेट भी दिखा दूंगी। बहुत सारी वीडियोस मैंने इसके अंदर एम्बेडेड की हैं एंड देन यू हैव टू डू द रीजनिंग बेस्ड असाइनमेंट एंड दैट असाइनमेंट इज असाइनमेंट नंबर 4।
इस असाइनमेंट में सबसे पहले एक डायग्राम आपके पास है, आपको उस डायग्राम को स्टडी करते हुए नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप सो दिस लेसन इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। आपने इस लेसन में अपनी क्यूरीज को सॉर्ट आउट किया होगा, आपको समझ में आया होगा हाउ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एक्टिविटीज़ की वीडियोस मैंने एम्बेडेड कर दी हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। हम आपसे वैसे भी शेयर करेंगे केपी के थ्रू इन वीडियोस के लिंक। इसके अलावा आई विल शेयर वन वीडियो ऑफ माई सेल्फ जिसमें मैं आपको लैब के अंदर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस परफॉर्म करके दिखा दूंगी। I hope so. This lesson is informative for you. It is a building block for your grade 8. So keep it in your mind. Take care of yourself. Allah Hafiz.